وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جلدی شروع کرا کرو پڑھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ایسی نکسیر پھوٹی کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، اس نے ظہر کے وقت وضو کر لیا تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا نکسیر کے خون کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے گا، البتہ اگر پاخانہ، پیشاب کیا یا بدن کے کسی حصے سے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ وضو کرے، اسی طرح ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اس وضو سے نماز اور فرض اور نفل جو نماز چاہے پڑھے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کر سکے معذور، کوئی زخم بہتا رہتا ہے یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا گیس اس کی خارج ہوتی رہتی ہے، اور وہ کیا کرے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، بھلے اس کو قطرے آ رہے ہوں یا ناک سے نکسیر چھوٹی پھوٹی رہی ہو، خون آ رہا ہے یا اس کا گیس مسلسل نکل رہا ہے، تو آدمی اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ ہاں، جب وقت نکل گیا اس نماز کا، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ اور اگر کوئی اور ادھر پا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ناک سے خون بہتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کو پیشاب آ گیا، اس پیشاب کرنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ دوبارہ وضو کرے گا۔ سر پھر وہ وضو سے سمجھ گئے؟ فرض ہی پڑھ لے یا جی استاد سنتیں بھی پڑھ لے؟ ہاں، سب کچھ پڑھے گا، جو وضو کیا ہے، جی سنت تمام پڑھے، عبادات کی جا فرض سکتی پڑھے، ہیں۔ ہاں نفل پڑھے، قرآن پڑھے۔ بس یہ ہے کہ جب وقت نکلے گا تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، ابھی یہ دوبارہ وضو کرے گا اگلی نماز کے لیے۔ اور یہ عشاء سے لے کے فجر تک بھی یہی مسئلہ ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں، یہ نہیں کہ سو جائے عشاء کے بعد۔ وہ تو ہے، سر جی ایسے امام لیکن اگر جاگتا ہے کیا قیام ہو اللیل کیا ہوا ہے تو تو سر جی ایسے امام بعض علاقے ہیں نا یہ روس کی طرف کے، اس طرف علاقوں میں نا راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جی استاد جی صحیح۔ ایسے علاقے ہیں جہاں پر راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جی ہمارا ان کے انگلینڈ لیے میں عشاء کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے اور فجر 3 بجے ہو جاتی ہے، تو اور یہ آپ کے تو آسان ہے، گرمیوں میں، صحیح رات آپ کے۔ گرمیوں میں گرمیوں میں صحیح۔ اچھا، روزے 19 گھنٹے کے ہوتے ہیں تقریباً۔ ماشاء اللہ، ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہے گرم ہے وہاں پہ علاقہ؟ استاد جی ایکسٹریم ہے، سردیوں میں سردی ہے کافی، ابھی -4 تک ہے، اور گرمیوں میں پھر ٹھیک رہتا ہے موسم۔ صحیح، چلیں آگے چلیں، مسئلہ نمبر 2۔ سر جی اگر ایسا شخص امام ہو اور اس کے اندر یہ اس طرح کی نہیں بھی ہو؟ نہیں 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 نہیں، معذور امامت نہیں کرائے گا، جی استاد جی معذور نہیں کرائے گا، ٹھیک ہوگا سر۔ معذور کے پیچھے معذور کو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی استاد جی جی، جی استاد۔ چلیں۔ مسئلہ نمبر 2، جب فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر سورج نکلنے کے بعد وضو کیا ہے تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جب عصر کا وقت آ جائے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ سورج نکلنے کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ استاد جی اشراق کے چار کس بعد نے میں بتایا؟ چاشت، پھر اس نہیں، کے کس نے بعد بتایا؟ چاشت۔ عمار بھائی سے پوچھ رہا ہوں میں۔ اچھا، جی استاد جی، عمار بھائی، سورج نکلنے وہ کے گھنٹے کے بعد بعد کون ہوئی، سی ہے؟ وہ گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، نہیں، اشراق ہوتے ہے استاد سورج جی، کے کتنے منٹ بعد پڑھی جاتی ہے؟ 10 منٹ بعد۔ استاد جی ویسے تو 3 منٹ بعد پڑھی جا سکتی ہے، نہیں 3 سے 4 منٹ بعد استاد جی، لیکن احتیاطاً یہ 10 منٹ۔ تو نہیں، احتیاطاً 20 منٹ ہے، کم سے کم 10 منٹ۔ اچھا ہمارے ہاں تو اتنا ہی، آپ کہاں کسی کا ہے فتویٰ اس چیز کا؟ استاد جی یہاں پہ تو جو اس میں بات ہو رہی تھی، کسی کا بتا رہے تھے حضرت کا، غالباً اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا کہ یہ سورج نکلنے میں وقت لگتا ہے، نکل جائے اس کی روشنی پھیل جائے،
अगर बाज़ इलाकों में फौरन फैल जाता है तो वो बात है। सर जी पूरा उसका शेख जोबन साहब, पूरा उसकी शक्ल हाँ, नजर आ जाए ना। शेख ज़कीर रहमतुल्लाह ने 20 मिनट लिखा है, अच्छा। जबकि आम आम तौर से लोग 10 मिनट के बाद नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। सर जी मुफ्ती 10 मिनट जरवरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि चाश की नमाज सूरज निकलने के बाद ही होती है। उसके बाद ये नहीं नहीं, कि ये आधे पौने घंटे बाद पढ़ लो तो वो चाशनी होगी, वो फिर इशराक की, इशराक नहीं होगी, वो चाश्त होगी। अच्छा, लेकिन इशराक जो है। जी मुफ्ती जी। साहब का तफर्रुद भी हो सकता है। जी जी सर जी, इसलिए वो लेकिन फरमा रहे थे, वो तो वैसे ही अपने इसमें अस्पाक में हाँ फरमा रहे थे। जी, लेकिन जो एहतियातन जमहूर का मजहब उसको लेना चाहिए। मुनासिब। उस्ताद जी ये जो अगर अभी इन्होंने बात की है कि काफी देर बाद अगर पढ़ेंगे तो वो इशराक नहीं होगी, चाश्त होगी। तो जमातों के साथ सुबह को जो बयान होता है उसमें काफी वक्त लग जाता है। उसके बाद जी जो जी, घंटे बाद जो पढ़ी जाते हैं दो नफल, तो वो इशराक के नहीं होंगे। इशराक की नियत इशराक हो जाएंगे, इशराक की नियत कर लेगा तो। और सर जी दूसरा वो फरमा रहे थे कि इशराक जो है ना वो दो नवाफिल ही है। हम्म, दो से ज्यादा नवाफिल इशराक के नहीं है, वो चाश्त के हैं, फिर आप 8 पढ़ें 12 पढ़ें। हाँ, तो उसमें ना वो, तो मैंने कहा चले आपसे कर भी। सकते हैं, कर सकते नहीं हैं। बेटा जी, ऐसे चार्ज के दो नफाफिल हैं बस। इशराक की। चाश्त के, चाश्त के 12 हैं, ज्यादा से ज्यादा कम भी पढ़ सकता है। इशराक के दो नवाफिल हैं, लोग जी चार उस्ताद, पढ़ते हैं। इशराक के कितने हैं? अवाबीन के भी 12 हैं उस्ताद जी, या नहीं अवाबीन और के 6 है। के छः हैं, 6 है। 6। ठीक है ना, ये फरमा रहे हैं भाई उस्मान साहब, मुफ्ती उस्मान साहब ने 11 मिनट लिखा है। जी जी सर जी। हाँ, तो अहनाफ का जो मजहब है ना, ये अहवत है इसमें, समझिए। जी हनफियों के सर। यहाँ अहवत यानी कि ज्यादा एहतियात बरतते हैं। ले चलें ये ले ये ले। आगे चलें। तो सर ये मसला नंबर 2 का ये है कि फजर का वजू जो है वो सूरज निकलने तक किया। जी हाँ, अभी इशराक पढ़ने के लिए नया वजू करेगा। और फिर जोहर के लिए अलग वजू करेगा, ऐसे ही सर जी। इशराक इसमें लिखा है कि इशराक के वजू से ये, अच्छा वो आगे नीचे लिखा है सर जी, जोहर के वक्त नया वजू करने की जरूरत नहीं। हाँ, अच्छा। चलें। जी उस्ताद, किसी को ऐसा जख्म था कि हर वक्त बहता रहता था, उसने वजू किया, फिर दूसरा जख्म पैदा हो गया और बहने लगा, तो वजू टूट गया, फिर वजू करे। जी हाँ, बात चलें। मतलब, अगर दोनों जी मुसलसल ऐसे चलते रहे कुछ दिनों के बाद, फिर तो इसे वजू नहीं टूटेगा इन दोनों से। हाँ, फिर नहीं टूटेगा इनसे। अगर अचानक पैदा अभी हो गया तो फिर टूट जाएगा। फिर टूट जाएगा। जी उस्ताद। चलें। मसला नंबर 3, जोहर का कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जख्म वगैरह वगैरह का खून बहना शुरू हुआ, तो वक्त के आखिर तक इंतज़ार करे और आखिर वक्त में वज़ू करके नमाज पढ़ ले। फिर अगर असर के वक्त में भी इसी तरह बहता रहा कि वज़ू से नमाज पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, तो अब असर का वक्त गुजरने के बाद माजूर होने का हुक्म लगाएंगे। और अगर असर के वक्त के अंदर ही खून बंद हो गया तो वो माजूर नहीं है। जो नमाजें इस दौरान पढ़ी हैं वो दुरुस्त नहीं हुई, दोबारा पढ़े। याद रहे कि असर के वक्त भी मकरूह वक्त तक इंतज़ार करे। अगर फिर भी खून बहना बंद ना हो तो वज़ू करके नमाज पढ़ ले। फिर अगर वक्त ही के अंदर बहना बंद हो गया, अगरचे वह वक्त मकरूह हो, तो ये शख्स माजूर ना होगा और वक्त की जो नमाज पढ़ ली है कज़ा करनी होगी। अगरचे इतना वक्त अब नहीं रहा कि वज़ू के फ़राइज़ अदा करके नमाज अदा कर सके, अलबत्ता अगर नवाफिल नफिल या सुन्नत पढ़ी हों तो उनकी कज़ा वाजिब नहीं। यानी कि कैसे उस्ताद जी समझिए इसको? आदमी इंतजार करेगा खून के बंद होने का। अगर खून बंद नहीं होता तो फिर ये माजूर शुमार होगा। यानी कि zuहर का वक्त है 4 घंटे, अब इसको जख्म हो गया और बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। इसने कहा तो ये तो बहता ही नहीं है, ये तो बंद ही नहीं होता। इसने वज़ू की नमाज पढ़ी इस हालत में और खून बाद में बंद हो गया, तो ये आदमी माजूर शुमार नहीं होगा।
चाहे वो वक्त मकरूह हो, सारी ऐसी है जिसमें नमाज ना पढ़ी जा ये ना सकती है। ये ना अब असर का वक्त। असर का सारी भी मगरिब से पहले पहले मकरूह हो जाता है ना। हाँ, इसमें इसमें ना आदमी नमाज पढ़ सकता है, यानी कि वक्त तो है असर का, खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक नमाज वक्त मकरूह है पढ़ना। हाँ, ये वक्त मकरूह है। वक्त मकरूह एक है। है वक्त का खत्म हो जाना, एक है वक्त का मकरूह होना, यानी कि इसमें इस वक्त में नमाज पढ़ने में कराहत है, लेकिन फर्ज तो पढ़ना पड़ेगी ना, फर्ज तो हो जाएगा उसका। जी और सही। अगर नमाज पढ़ते अजान हो गई तब भी इसकी नमाज दुरुस्त हो गई। हाँ, फजर की नमाज पढ़ रहा था और सूर्य निकल आया, इसकी नमाज खत्म हो गई, अब ये उसकी अच्छा कजा अच्छा। करेगी। हाँ। अच्छा, बाकी नमाजों का नहीं, ये सिर्फ फजर का है। हाँ, अच्छा। चलो। तो उस्ताद जी असर का वक्त मकरूह कितने बजे शुरू होता है? असर का वक्त मकरूह। जब सूरज का रंग बदल जाता है ना, पीलापन हो जाता है, फिर ये सुर्खी आ जाती है, तो नमाज का ये फिर जी। वक्त मकरूह हो जाता है। अच्छा। इसमें आगे आएंगे औकात, जी नमाज के उस्ताद जी। औकात आगे आएंगे। जी। जो उस्ताद जी जिन्हें असर की नमाज पढ़ी उसके बाद भी नवाफिल पढ़ सकते हैं, फर्ज पढ़ने के नहीं, बाद? असर की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ना नहीं है। कज़ा नमाज अच्छा। पढ़ी जा सकती है। हाँ, कहती है सर। नफिल नहीं पढ़ सकते, जी हाँ। अच्छा। चलें। मसला नंबर 4। आदमी माजूर जब बनता है और ये हुक्म कि हर नमाज के वक्त वज़ू करे और जब तक वो बाकी रहेगा उसका वज़ू बाकी रहेगा, उस वक्त लगाते हैं कि पूरा एक वक्त उसी इसी तरह गुजर जाए तो खून मुसलसल बहता रहे और इतना भी वक्त ना मिले कि इस वक्त की नमाज वज़ू से पढ़ सके। अगर हम्म, इतना वक्त मिल गया कि इसमें वज़ू से नमाज पढ़ सकता है तो उसको माजूर नहीं कहेंगे और जो हुक्म अभी बयान हुआ है उस पर नहीं लगाएंगे। अलबत्ता जब पूरा एक वक्त इसी तरह गुजर गया कि उसको वज़ू से नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला तो ये माजूर हो गया। अब इसका हुक्म वही है कि हर हर नमाज के वक्त नया वज़ू कर लिया करे और इस वक्त के अंदर एक ही वज़ू से जितनी नमाजें फ़राइज़ और नवाफिल वगैरह पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। फिर जब दूसरा वक्त आए तो उसमें हर वक्त खून का बहना शर्त नहीं, बल्कि पूरे वक्त में अगर एक दफ़ा भी खून आ जाया करे बाकी सारा वक्त बंद रहे तो भी माजूर का हुक्म, ये क्या है, माजूर का हुक्म बाकी रहेगा। हाँ, अगर इसके बाद एक पूरा वक्त ऐसा गुजर जाए कि खून बिल्कुल ना आए तो अब माजूर नहीं रहा। इसका हुक्म ये है कि जब भी खून निकलेगा तो वज़ू टूट जाएगा। सर जी कौन सा मसला पढ़े? तो उस्ताद जी ये तो वैसे एक सवाल था। ये नंबर 4। अच्छा, स्क्रीन पे अच्छा अच्छा, मैंने ऊपर की। जी जी एक तो जो साथी पढ़े उसको समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। ऐसे उस्मान रहे। नहीं नहीं, मैंने वो नीचे किया था स्क्रॉल। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पढ़े बंदा सबक उसको समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ था ना, पता नहीं उस शाही का थोड़ा नेट का हो गया। तो इसमें ये था कि अगर एक नमाज का पूरा वक्त गुजर गया ना, जैसे मिसाल के तौर पर असर का वक्त 3:30 बजे शुरू हो रहा है हमारे यहाँ ना, तो 3:30 से पहले उसको वो खून आया, 3 बजे आ गया, 3:15 बजे आ गया, 1 बजे आ गया, जिस वक्त भी आया, तो वो असर का पूरा वक्त उसको खून आता ही रहा, रुका नहीं कि जितनी देर में 4 फर्ज पढ़ सके वजू करके, तो फिर वो माजूर हो गया। अगर वो उससे पहले रुक गया, मतलब असर का वक्त खत्म आजकल हो रहा है 5:10 पे ना हमारे यहाँ, तो अगर उसका 5 बजे भी खून रुक गया तो 10 मिनट में मतलब वजू करके 4 फर्ज पढ़ सकते हैं, तो वो फिर माजूर नहीं हुआ। अगर